CGS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ SI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CGS ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ SI ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੋ ਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹ CGS ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7 ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ 3 ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਇਹ 3 ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ CGS ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, CGS ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, C ਫॉर ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, G ਫॉर ਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ S ਫॉर ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਮਤਲਬ these are the small units of the length, mass, time। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸ ਸੈਟਅਪ ਇਨ ਫਰਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ FPS ਸਿਸਟਮ। ਦਿਸ ਵਨ FPS ਸਿਸਟਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ FPS ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖੂੰਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ। F ਮੀਨਸ ਫੁੱਟ, P ਫॉर ਪੌਂਡ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੌਂਡ, ਐਂਡ S ਫॉर ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਫੁੱਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਪੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MKS ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ MKS ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? M ਫॉर ਮੀਟਰ, K ਫॉर ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ and S for second। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਏ, ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸੈਕਿੰਡ। ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SI ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਬੜੀ ਯੂਨਿਟਸ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ MKS ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ SI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ, ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? CGS ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇੱਕ SI ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਨੀ ਆ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
वन इज फंडामेंटल यूनिट जिन्हों आप ड्राइव नहीं कर सकते, ਉਹਦੀਆਂ मैं तुहानूं 7 करवाइयां सी आ वालियां जिन्होंने आप ड्राइव नहीं कर सकते। मास, लेंथ, टाइम, इलैक्ट्रिक करंट, मोस्टली आप आ 3 यूज़ करते हैं। इलैक्ट्रिक करंट, टैंपरेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर ते ड्राइव्ड यूनिट भी जिहड़ियां फंडामेंटल तो ड्राइव्ड होंदियां ने। एक होंदियां ने सप्लीमेंटरी यूनिट्स। सप्लीमेंटरी यूनिट्स किहड़ियां होंदियां ने वो मैं स्टडी करवानी है। देखो आ सी सप्लीमेंटरी यूनिट्स। सप्लीमेंटरी यूनिट दे विच आपां स्टडी कर सकते हैं। वी डिस्कस द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, मतलब थ्रू सप्लीमेंटरी यूनिट वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, मतलब बॉडी घूमती है ना, कोई भी बॉडी घूमती है, कोई फुटबॉल ला लो, कोई सर्कल ला लो, कुछ भी ला लो ना, घूमती है, किन्ने एंगल ते वो घूम रही है। इहदियां 2 टाइप्स होंदियां ने। वन इज प्लेन एंगल, मतलब रोटेट करती है ना कुछ एंगल ते ही वो रोटेट करूगी। एक तो प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल है। मैं तुहानूं इन्हां दोनों दे विच दसदी हां फर्क की हुंदा। प्लेन एंगल नूं आपां कित्थे यूज़ करते हैं, जिहड़ा हुण तुसीं 10th तक पढ़दे आ रहे सी ना, सिंपल प्लेन एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो सारे किसी प्लेन एंगल से सर्कल दे विच आपां बनांदे सी, जिहदा एरिया हुंदा सी पाई आर स्केयर एंड सरकमफ्रेंस हुंदी सी 2 पाई आर। ठीक है जी, वो प्लेन एंगल से। सॉलिड एंगल भी मैं दसदी हाँ, ये भी आपां किवें यूज़ करांगे, इनू भी मैं तुहानूं स्टडी करवानी हाँ। देखो सब तो पहली गल, एंगल हुंदा की है? एंगल एक इनकलिनेशन आ जिहड़ा 2 लाइन्स दे विच बनदा है। एवें जे मैं कहा जिहड़ा इहदे विच एंगल बनूगा, एवें लै ला मैं आ, जिवें मान लो मेरे कोल आ 2 लाइन्स ने, है ना, इहदे विच जिहड़ा आ इंकलिनेशन बनूगी, इनू आपां बोलदे आ एंगल। सिंपल जे मैं समझावां इनू तां एंगल की हुंदा, इट इज़ डिफाइंड एज द इनकलिनेशन। एक इनकलिनेशन आ, बैंड है इन्हां दोनों लाइन्स का, उन्होंने आपां बोलदे आ एंगल। सिंपल। तो मैं तुहानूं दोनों दसदी हाँ भी प्लेन एंगल की हुंदा एंड सॉलिड एंगल की हुंदा। जिहड़ा तो प्लेन एंगल हुंदा वो तो 2 डायमेंशनल ज्योमैट्री दे विच यूज़ हुंदा, जिवें कि ट्राइंगल 3 साइड्स होंदियां ने ना, उहदे विच जिहड़ा एंगल बनदा है उहनूं आपां बोलदे आ प्लेन एंगल। स्क्वायर हो गया, सर्कल जिहड़ा आपां 10th तक पढ़दे आ रहे सीगे। तां हुण तुहानूं सिंपल इहदा पता चल गया ना भी एंगल की हुंदा है। एंगल सिंपली एक इंकलिनेशन हुंदी आ जिहड़ियां 2 लाइन्स दे विच बनदी है। ठीक है, इहदी मैं तुहानूं प्रॉपर डेफिनेशन करवानी है। देखो अपने कोल मैंने आ 2 लाइन्स लै लियां, ठीक है, ये मैंने कहता भी जिहड़ा आ एंगल बन रहा है इनू मैंने प्लेन एंगल कहता। ठीक है, यह एंगल की है विद रिस्पैक्ट टू दिस रेडियस, ये की रहूगा सेम, चाहे तुसी आ वाली आर्क की जिहड़ी लेंथ है उन्होंने तुसी इनक्रीज करी चलो, बट जिहड़ा हा डी थीटा है इन्हां दोनों लाइन्स दे विच बन रहा है ये सेम रहूगा। मीनस आपां ये कह सकते हैं भी जिहड़ा अपना ये प्लेन एंगल है ओहो किहदे उपर डिपेंड कर रहा है, जिहड़ी आर्क की लेंथ है एंड रेडियस, मतलब ये इत्थे भी इन्ना ही रहू, इत्थे भी इन्ना ही रहूगा। तो मैंने लिखा होएगा इट इज़ डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। देखो किसी भी सर्कल के सेंटर दे विच वाई एन आर्क, आर्क किहड़ी होगी आ वाली, दिस इज आर्क, आ आर्क है, आर्क इक्वल इन लेंथ, ये किहदे इक्वल आ लेंथ, किन्नी बॉडी लेंथ कवर कर रही है, बॉडी इत्थों चलना मान लो स्टार्ट करती है, बॉडी किन्नी लेंथ कवर कर रही है टू रेडियस ऑफ सर्कल, किन्ना रेडियस आ उस सर्कल का, उस हिसाब नाल वो लेंथ कवर करूगी, उन्होंने आपां बोलदे आ प्लेन एंगल। सिंपल मीनस मैं यदि डेफिनेशन कल भी मैं तुहानूं इहदा फॉर्मूला लिखवाया सी, तां थीटा इज इक्वल टू, सिंपल मैं की लिख सकदी हां, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, जिहड़ा मेरा एंगल बन रहा है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ होगी ये 2 लाइन्स दे विच ही बन रहा है। मीनस जिवें मैं ऐं कहदा भी आह 2 लाइन्स दे विच जिहड़ा एंगल बन रहा है ये सिंपल की है आर्क लेंथ है अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ की है, एक लेंथ ही है, मीनस इनू आपां एल लिख सकते हैं, जिन्हों मैंने डी एस लिखा क्योंकि स्मॉलर डिस्टेंस कवर की है ना, डी एस एंड अपॉन एल। तो यह सिंपल आ गया। हुण तुसीं कहोगे भी लेंथ यूनिट भी मीटर होंदी है, रेडियस की यूनिट भी मीटर होंदी है, तो मीटर मीटर कट गया तो यूनिट लैस आ गया, बट नहीं ये यूनिट होंदी है, किहड़ी यूनिट होंदी है रेडियन। इनू किहदे विच कंपेयर किया जाता है, रेडियन दे विच इनू मेयर किया जाता है। हमेशा ही याद रखियो कहते भी जिहड़ी यूनिट लैस क्वांटिटी है वो मे हैव डायमेंशन लैस, मतलब जिहड़ी यूनिट लैस क्वांटिटी आ
ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ R ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਬਾਈ ਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ आंसर कितना आ गया अपने को 0 ठीक है इट्स यूनिट इज रेडियन नेक्स्ट आ गया अपने को सॉलिड एंगल की है देखो सॉलिड एंगल जिहड़ा है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ठीक है ये मैं दस दी तुहानूं पहला ये देखो जिवें हुण मान लो अपने कोल आह एक बॉडी है उहदा रेडियस R वो इत्थों चल के इत्थों तक मूव करती है ठीक है वो इत्थों तक चल के इत्थों तक मूव करती है ना वो सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई है एंड उसका रेडियस कितना हो गया R नाल R कट गया ना दैन वो एंगल कितना बनता आप कहने वो एंगल कितना बनता 360 का तो मैं ये कह सकती हाँ भी जोड़ा वो एंगल 2 पाई रेडियन दिस इज नोन एज 2 पाई रेडियन क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया ना थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R L इज सरकमफ्रेंस जिन्नी वो बॉडी मूव कर रही है 2 पाई R अपॉन R कितना आ गया अपने को 2 पाई मीनस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई मीनस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री या फिर 2 इधर आ जाऊगा देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई समझ गए ये चीज़ है मीनस ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੇ ਹੈਵ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇ ਹੈਵ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਹ M/M ਆ ਗਿਆ ਨਾ then M/M डायमेंशनलैस हो गया यदि यूनिट फिर भी तो आई ना रेडियन तो तुसी आ दोनों फैक्टर याद रखोगे ऑल डायमेंशनलैस क्वांटिटी मे हैव यूनिटलैस क्वांटिटी वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो सकती है बट जी यूनिटलैस होणगियां वो कोई डायमेंशन नहीं होगी मस्ट बी सच यूनिटलैस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलैस ऑल डायमेंशनलैस क्वांटिटी मे हैव यूनिटलैस क्वांटिटीज नेक्स्ट आ गया अपने को सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल की है ये की है 3 डायमेंशनल आप कि यूज करते हैं जिमें कि स्फीयर कोन क्यूब वाटरमैलन आप कहने होंगे ना जो आप शॉप के उपर जाने भी देखो मिठा है कि नहीं दैन वो अपन एक पैच कट के दिखा दिता है ना वो पैच का सेंटर नाल कितना एंगल बन रहा है उन्होंने आप सॉलिड एंगल बोलते हैं जिमें हुण मैं आइसक्रीम लै ला है ना उपर वाला जिहड़ा आह कोण है उहदा इहदे नाल कितना एंगल बन रहा सेंटर नाल इहनूं आपां सॉलिड एंगल बोलते हैं जिवें कि फुटबॉल दा मैं उपर वाला एक पैच ला ला उहदा सेंटर नाल कितना एंगल बन रहा है दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल तो देखो इहनूं आपां रिप्रजेंट करते हैं थीटा नाल डी थीटा नाल इहनूं रिप्रजेंट करते हैं ओमेगा नाल डी ओमेगा इट इज डिफाइंड एज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ये भी सेंटर सी ये भी सेंटर ते सी ऑफ स्फीयर इक्वल इन एरिया ये की सी लेंथ ये की आ एरिया ऑफ दैट स्फीयर हैविंग ईच साइड इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर दैन अपने को आ गया फॉर्मूला इनू आप थीटा ना रिप्रजेंट करते हैं इन ओमेगा दिस इज नोन एज ओमेगा सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर ठीक है सरफेस एरिया चाहे आप स्फीयर का ला के चलीए मान लो अपने को आ चीज़ लै ली मैंने ठीक है वो एक चक्कर एवं पूरा कर रहा है दैन वो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्केयर एंड वो रेडियस आर स्केयर आ कट गया दैन अपने को आंसर कितना आ गया 4 पाई मीन सॉलिड एंगल के जो एंगल बनना 4 पाई रेडियन एंड प्लेन एंगल के जो एंगल बनना वो कितना है 2 पाई ठीक है जी तो यदी यूनिट होंगी है ST रेडियन क्योंकि सरफेस एरिया नाल रिलेटेड है तो ये लेंथ नाल रिलेटेड है सरकमफ्रेंस नाल रिलेटेड है दैन यदी यूनिट होंगी है रेडियन डिग्री मिनट सेकंड समझ आया इन्नी गल तुहानूं समझ आया सप्लीमेंटरी एंगल्स मतलब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दसो भाई समझ आया प्लेन एंगल सॉलिड एंगल
अच्छा चलो प्लेन एंगल तुहानूं पता चल गया होना प्लेन एंड सॉलिड एंगल जिहड़ा है ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ फाइंड आउट करना ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਨੇ ਆ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बनने हैं ठीक है जी ये तो सीगा ये याद रखियो भी जिहड़ा प्लेन एंगल आ वो लेंथ दे नाल हुंदा है जिहड़ा अपने कोल सॉलिड एंगल हुंदा वो सरफेस एरिया नाल हुंदा समझ आया ते इहदे नाल ही मैं ना तुहानूं एक कल क्वेश्चनस दिते सी 3 क्वेश्चनस एक तो मैं तुहानूं कहा सी व्हाट इज द रिलेशन वन पैरासिक एंड वन बिटवीन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक मैं तुहानूं दिता सी हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर एक गया सी मैंने कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर किने किने फाइंड आउट कीते दसो किसी ने नहीं कीते आंसर दसो ओके आंसर दसो बेटा पहले दा फर्स्ट अच्छा ठीक है वेरी गुड 1.057 into 10 power minus 16 light year how many light years are there in 1 meter ਦੇ ਵਿੱਚ find out ਕੀਤਾ अपने को आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 point मैंने वैसे सॉल्व भी किया ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ नहीं किया आ सॉल्व किया होया देख लो 1 light year is equal to this ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ अपने को आंसर आ जाना 1.057 into 10 power minus 16 अच्छा नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर कितना आया आंसर ਤੁਹਾਡਾ ठीक है ये भी सही है ये भी अपन की करना सी नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स फाइंड आउट करनी सी 1 मीटर है ना दैन अपन मीटर दे विच दिता होया दैन मीटर नू इधर रख के 6.685 कोई बात नहीं 6.6 ठीक है इंटू 10 पावर माइनस 12 ना सही है ये वाला जिन्हें नहीं किया होया मैंने आ सॉल्व किया होया देख लो ठीक है चलो ये नाल दे 2 क्वेश्चंस होर करो लिखो लिखो how many parasec are there in 1 meter how many parasec are there in 1 meter एक ए क्वेश्चन तुसी सॉल्व करना है नेक्स्ट वन इज how many parasec are there in 1 light year okay next हुण मैं तुहानूं थोड़ी जिहा होर देखो अपने आ वाली यूनिट्स फाइंड आउट कर लिया सी यूनिट्स ऑफ लेंथ 1 मेगामीटर इज इक्वल टू दिस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर डेकामीटर पिकोमीटर है ना कुछ मैं यूनिट्स करवानी है एरियाज दी लिख लो ये नाल नाल 5 करते जाऊंगी ना तुहानूं याद हो जानियां ने ठीक है यूनिट्स ऑफ एरिया लिखो फर्स्ट यूनिट है 1 बैरन बैरन किहदे लई यूज किया जाता है स्मॉल एरिया दे लई बैरन यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया ठीक है इहदी वैल्यू कितनी हुंदी है 10 raised to power minus 28 मीटर स्क्वायर ये तुसी याद करनी है नेक्स्ट वन इज एकड़ एकड़ तुसी सुनिया होना ना 1 एकड़ ये किहदे लई यूज की जाती है लार्ज एरिया दे लई लार्ज एरिया दे लई इहदी वैल्यू कितनी हुंदी है 4047 मीटर स्क्वायर नेक्स्ट वन हेक्टेयर भी सुनिया होना तुमने हेक्टेयर भी लार्ज एरिया दे लई ही यूज की जाती है लार्ज एरिया मेयर करने दे लई इहदी वैल्यू हुंदी है 10 raised to power 4 मीटर स्क्वायर ठीक है जी ये नहीं एरिया दी यूनिट्स तुसी ये तीनों भी याद करनियां ने ठीक है जी ओके
हाँ जी कल नू मैं थोड़ा की करना गा अपने आह वाले जिन्ना भी हो चुका है इनू रीड आउट करके रखियो। कल नू मैं थोड़ा जिहा छोटा जिहा टेस्ट लूँगी ठीक है इत्थे क्लास दे विच। ओके बेटा चलो समझ आ गया। ठीक है कल नू आपां अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा।